لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے، خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائے۔ پاکستان کے پاس کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں، وہ ایسے جہاز ہوتے ہیں کہ ایون جو امریکن ملٹری انجینئرز ہیں وہ بھی شوق ہو جاتے ہیں۔ سائنس میں بھی ترقی کر لے گا پاکستان انشاءاللہ، سائنس میں بھی ترقی کرتا ہے، اور پھر غزوہ ہند بھی ہوتی ہے۔ جنگ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان ترقی کرتا ہے نا تو انڈیا سمیت پاکستان کے جتنے دشمن ہیں نا ان سے ہضم نہیں ہوتی پاکستان کی ترقی، جیلسی، حسد کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ لاہور میں ایک شخص ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم؟ نہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں۔ امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا، یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا۔ جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے تو مجھے نہیں تھا پتا یہ مجھے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو یہ پھر کئی سالوں کے بعد مجھے ڈریم میں آیا، حکم ہوا کہ میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، تو مجھے نہیں تھا پتا اس وقت۔ یہ میرے لیے بھی ایک شوکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ڈریم سے تو شاید میرے اپنے گھر والے یقین نہ کریں، تو یہ لوگ کیسے یقین کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بھی حکم دیں کہ یہ آپ کام کریں، تو کیا آپ ان کو انکار کر دیں گے؟ تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے۔ وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ تو یہ تو پھر ڈریمز ہیں اور بیڈ کمنٹس آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہوں، میں برا لگتا ہے مجھے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ پھر اس کو قبول ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ پاس کرنے سے پہلے ایک بار یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے قیمتی ثابت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں خوابوں کی کیا اہمیت ہے، کیا انسان خواب میں اللہ کی زیارت اور کلام کر سکتا ہے، محمد قاسم کون ہے، کہاں سے ہے، اور وہ اپنے خواب کیوں بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کو امام مہدی کیوں کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی خود کو امام مہدی کہتے ہیں یا نہیں۔ برائے مہربانی یہ چینل کسی قسم کی فیک باتیں شیئر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایسی کمائی اسلام میں حرام ہے، اور اس میں بہت سارے علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں۔ اب آئے ہم اسلام میں خوابوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں۔ ہم سب بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام میں خوابوں کی بہت اہمیت ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب آیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب بھی مختلف احادیث میں آئے ہیں، اور نبیوں کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں جو کہ برحق ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر امتیوں کے خواب کی بات کریں گے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امتیوں کے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور دماغی سوچ کے خواب۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری 6990 نبوت میں اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچے خواب۔ ایک اور حدیث حاکم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا،
तो सहाबाए कराम ये बात सुनकर परेशान हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबशिरात चलते रहेंगे। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबशिरात से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चे ख्वाब, और ये नबूवत के अज्जा में 40वां हिस्सा है। और यही हदीस अल-मुता इमाम मालिक 1744 में भी आई है। और एक हदीस मुस्नद अहमद 7819 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, तर्जुमा इनके लिए दुनियावी जिंदगी में खुशखबरी है। इस खुशखबरी से मुराद अच्छा ख्वाब है जिसमें मोमिन को खुशखबरी दी जाती है। और ये नबूवत का 49वां हिस्सा है। जो ऐसा ख्वाब देखे तो वो दूसरों तक पहुंचाए। और इसके अलावा जो ख्वाब जो अच्छा ना हो वो शैतान की तरफ से है जो इसे परेशान करता है, और वो इसकी खबर किसी को ना दे, और 3 दफा अपनी बाएं जानब थूके और किसी को ना बतलाए। और तिरमिज़ी 2270 में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब ज़माना करीब हो जाएगा तो मोमिन के ख्वाब कम ही झूठे होंगे। इनमें सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब वाला वो होगा जिसके ख्वाब सबसे ज़्यादा सच्चे होंगे। और ख्वाब की 3 किस्में हैं, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से, और कुछ ख्वाब दिल के ख्यालात होते हैं। उम्मीद है कि इन अहादीसों को सुनकर हमें यकीन हो गया होगा कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं, और नबूवत का हिस्सा झूठा नहीं हो सकता। और ये फरमान आका अलैहिस्सलाम का है। और एक और हदीस तिरमिज़ी 2270 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि क़यामत के करीब बहुत कम ही मोमिन के ख्वाब झूठे होंगे। और यही वजह है कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के तकरीबन अभी तक काफ़ी सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं, जो कि मोहम्मद कासिम ने का पीटीआई से अलग होना और पीटीआई का जहाज़ तबाह होना 9 मई जैसे वाक़यात से रिलेटेड है। नवाज शरीफ का वतन वापस आकर कामयाब ना होना, और इमरान खान के बाद जरदारी का सदर बनना, और फिर नवाज शरीफ का कत्ल होना, और एक और मशहूर शख्स का कत्ल होना, और पूरे मुल्क में इंतशार होना, और मोहम्मद कासिम इसके बाद पाकिस्तान का सदर बनना, जो कि अभी पूरे होने के करीब हैं। और ये सब ख्वाब इनके चैनल पर पिछली डेट पर अपलोडेड है। ताहम उन्होंने इसराइल का फ़लस्तीन पर अटैक करना, और अमेरिका का सबसे पहले जंग में छलांग लगाना, और फिर रूस का हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर प्रॉक्सी वार का शुरू करना, और मुसलमान औरतों और बच्चों का गाजर और मूली की तरह कट कर शहीद होना, और इस जुल्म के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों का सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहना है। और फिर तुर्की और और तमाम अरब इलाके इसराइल के पास चले जाना, और फिर अमेरिका इसराइल का इंडिया में आकर इस्लाम के आखिरी किला पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करना, जो कि मोहम्मद कासिम के ख्वाबों के मुताबिक ग़ज़वा हिंद है, जो कि पाकिस्तान जीत जाता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद कासिम को ख्वाब में बताया है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को 3000 ब्लैक जेट फाइटर अता करेगा जो सुपरसोनिक होंगे, जो कि खुरासान के काले लश्कर हैं। ये सब ख्वाब पिछली डेटों में अपलोडेड हैं। और याद रहे कि अल-हाकिम 8432 में ततलू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सूरज ज़मीन से ऊपर उठता है और जहाज़ भी ज़मीन से ही ऊपर उड़ते हैं। ये सब बातें सुनकर मोहम्मद कासिम के ख्वाबों का इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। और इसी हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि वो इस तरह अटैक करेंगे कि किसी कौम ने ऐसी जंग ना की होगी। और मोहम्मद कासिम ये भी कहते हैं कि वो जेट फाइटर इतने तेज़ी से अटैक करते हैं कि अमेरिका और रशिया के मिलिट्री इंजीनियर भी परेशान हो जाते हैं कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और मोहम्मद कासिम का कहना है कि ये जेट फाइटर ग़ज़वा हिंद से पहले हमारे पास होंगे, और ग़ज़वा हिंद वर्ल्ड वॉर 3 का पार्ट है। और ख्वाबों में इन जगहों का ग़ज़वा हिंद तक पहुंचने का वक्त 4 से 5 साल है, जो कि अब फ़लस्तीन से स्टार्ट हो चुकी है। फिर शिर्क जो है ना वो गवर्नमेंट के लेवल पे खत्म किया जाता है, बैन हो जाता है, जी, लॉ बन जाता है, कानून नाफिज हो जाता है कि जो भी शिर्क करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फाइन होगा, ये वाला फाइन तो छोटी सी चीज है। फिर उसमें ये भी होता है ना कि मेरे अगर हाथ सच्चे हो रहे हैं तो लोग खुद भी इस पे अमल करते हैं। तो जब शिर्क से बात अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, आपके जरिए से आपका क्लेम है। इन शॉर्ट सम अप करते हैं चीजों को। अल्लाह ताला की तरफ से अवाम को एक मैसेज कन्वे हो रहा है आपके थ्रू, दैट्स व्हाट यू आर क्लेमिंग। जी आप थ्रू फॉर, जी आप ऐसे करेंगे, बस जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह के। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो आप कर रहे हैं, आई एम श्योर, मैंने असल मादरत के साथ मैं क्योंकि यूट्यूब वगैरह इतना यूज़ नहीं करता, तो आपका मैंने चैनल नहीं कभी देखा, लेकिन आई एम श्योर कि मैं अब इंशाल्लाह आपको स्टडी भी करूँगा। अब तक की गुफ्तगू के मुताबिक शिर्क से रोक रहे हैं, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ शिर्क की तबाहकारी है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा इतना बदहाल है। हम जहाँ पे थे ना, अब मुझे बताएं शिर्क हो गया जी। अब हमने जब आर्मी चीफ को पता चल गया, विटनेस मिल गया, उसके बाद फिर कानून बन जाता है और शिर्क से पाक किया जाता है। फिर अल्लाह की मदद आती है, और फिर अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करता है, और पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की करता है।
इतनी तेज़ी से तरक्की करता है कि जो यूरोप के और अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ये कौम तो बड़ी पस्त कौम थी और ये कैसे तरक्की करती चली जा रही है और ये हमसे भी आगे निकलती मतलब फिर तो खान साहब की बात सच्ची होगी, हम कर्जे देंगे, इनको नौकरियां देने आएंगे ये लोग। बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और फिर अच्छा, मतलब ये होगा, ये आप श्योर हैं इस बात जी, पे? ये इंशाल्लाह ऐसा तो होगा। मैं ये, बल्कि अगर कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फौज के अंदर या कोई हुक्मरान मेरी ये बात सुन रहा है तो मोहम्मद कासिम भाई के मुताबिक जो है, इस मुल्क से शिर्क का खात्मा कर दें, इनको ख्वाब आ चुका है कि इस मुल्क से शिर्क का खात्मा कर दें, मुल्क ट्रैक पर चल जाएगा, यहाँ तक तरक्की कर लेगा पाकिस्तान कि यूरोप, अमेरिका, तमाम तर दुनिया के लोग यहाँ पे नौकरियां ढूंढने आएंगे, यहाँ पे हम पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक को कर्जा देगा, इतनी तरक्की कर लेगा और लोग एक मिसाल बना देंगे पाकिस्तान को। ये इतने बदहाल लोग थे, इतने तरक्की कर गए, जैसे लोग चाइना की मिसाल देते हैं, इंडिया की मिसालें दे रहे हैं, बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं, वो भी हमारे इर्द गिर्द वाले मैंने इसलिए मिसाल दी है कि ये तो हमारी एक साथ की मिसालें हैं, बड़ी तरक्की कर गए हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ऐसे होगा। और फिर मैंने ये भी मुखातिब होकर इसलिए कहा कि ये मेरा क्लिप जो है ना, वो आप काट के पहुंचाएं आप ये सोशल मीडिया के ऊपर, हम अपने मुल्क के लिए तो है वो कोई काम कर दें तो शायद अल्लाह में भी इस चीज़ का अजर है जी। और फिर पाकिस्तान के पास काले रंग के जंगी जहाज होते हैं और वो ऐसे जहाज होते हैं कि इवन जो अमेरिकन मिलिट्री इंजीनियर्स हैं वो भी शौक हो जाते हैं। साइंस में भी तरक्की कर लेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। साइंस में भी तरक्की करता है। और फिर गजवा हिंद भी होती है और गजवा जंग आपने करा दी है, देखें डिस्टेबलाइज कर दिया सारा मामला चलते चलते। आपने इतना पाकिस्तान को तरक्की पे पहुंचा के ना जंग छड़वा दी है। ये जो है ना, ये जंग क्यों होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान तरक्की करता है ना, तो इंडिया समेत पाकिस्तान के जितने दुश्मन है ना, उनसे हजम नहीं होती पाकिस्तान की तरक्की। जेलसी, हसद करते हैं। हसद, बिल्कुल। तो इंडिया जो है वो एक अपने इत्तेहादियों से मिलके पाकिस्तान पे एक हमला करता है, जो इससे पहले वर्ल्ड वार 3 भी स्टार्ट हो चुकी होती है मिडल ईस्ट में। तो इंडिया अपने इत्तेहादियों से अटैक करता है और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान की मदद करता है और काले रंग के जंगी जहाज़ों से मदद करता है। और वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनके सामने जो है ना कोई मशीन टिकती नहीं है। तो पाकिस्तान गजवा हिंद जीतता है और पूरे इंडिया पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है अल्लाह की मदद से। क्या बात है। मैं तो यकीन मोहम्मद कासिम ने ख्वाब में देखा है कि मुसलमानों का दोबारा अरूज गज़वा हिंद के जीतने के बाद स्टार्ट होता है, जो कि दज्जाल के ज़हूर तक जारी रहता है। और इन ख्वाबों की तस्दीक अहादीसों से भी हो रही है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकम 8297 में फरमाया है, बैतुल मक़दस की तामीर यसरब मदीना की बर्बादी है और यसरब मदीना की बर्बादी जंगों का वक्त है, जो कि कासिम के ख्वाब के मुताबिक 4-5 साल का वक्त है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंगों का रुनुमा होना कुस्तुनतुनिया की फतह का वक्त होगा और कासिम के ख्वाब के मुताबिक कुस्तुनतुनिया तबाह हो जाएगा। और गज़वा हिंद के बाद मुसलमान इन्हीं ब्लैक जेट फाइटर्स की मदद से कुस्तुनतुनिया दोबारा वापस हासिल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का ज़हूर है और दज्जाल का ज़हूर इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद ही होगा। और मोहम्मद कासिम के बकौल फिर दज्जाल को मैंने अपने ख्वाबों में देखा है और हमारी जंग भी होती है, लेकिन हम मुकाबला नहीं कर पाते। और फिर अल्लाह अपने प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारते हैं और हम सब मुसलमान हजरत ईसा के पास चले जाते हैं और फिर वो दज्जाल को कत्ल करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकम 8313 में फरमाया है, जंग अज़ीम फतह कुस्तुनतुनिया और दज्जाल का ज़हूर 7 महीने में होगा, जो कि कासिम के ख्वाब के मुताबिक ब्लैक जेट फाइटर्स की मदद से हम फतह पे फतह बहुत तेजी से हासिल करते हैं। और इस गज़वा हिंद में 80 करोड़ के करीब लोग मरते हैं और ज़्यादातर इंडियन है, पर हम इंडिया के मुसलमानों को बचाने की भी सेफ्टी करते हैं। और मैं उन लोगों की लाशें देखकर रोता हूँ कि ये जंग इंडिया, इसराइल और अमेरिका ने हम पर। अब हम बात करेंगे कि ख्वाब में कोई उम्मती अल्लाह या नबी की ज़ियारत कर सकता है या नहीं। मैं आपके सामने चंद अहादीसें और आयात पेश करता हूँ और उम्मीद है कि आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान अपनी जागी हुई हालत में अल्लाह की ज़ियारत नहीं कर सकता, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी नहीं कर सके थे और सब जरा सी तजल्ली देकर बेहोश हो गए थे। और हमारा ये भी ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिराज में जागी हुई आंख से अल्लाह की ज़ियारत नहीं की, जो कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सही मुस्लिम 439, 440, 447 में क्लियर कर दिया है। अम्मा आयशा ने फरमाया, 3 चीजें ऐसी हैं जिसने इनमें से कोई बात कही, इसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। मैंने पूछा कौन सी हैं? फरमाया, जिसने ये बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, तो इसने अल्लाह पर झूठ बांधा। मैं टेक लगाए हुए बैठा था तो ये बात सुनते ही सीधा होकर बैठ गया और कहा, अम्मा जान मेरी बात सुनने और जल्दी ना करें। क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उन्होंने इसे रोशन किनारे पर देखा और एक बार उतरते हुए देखा? तो अम्मा आयशा ने फरमाया, मैं इस उम्मत में पहली हूँ जिसने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद पूछी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और मैंने इन्हें 2 दफ़ा के अलावा कभी नहीं देखा। और फिर अम्मा आयशा ने सूरत अनाम 103 आयत तिलावत की कि कोई आंख
اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ سب کا ادراک اور دیکھ سکتا ہے، اور وہ باریک بین ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے بڑے پیغمبر بھی اللہ کی زیارت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور وہ تو صرف ایک تجلی تھی۔ اور جو احادیث ابن عباس، انس بن مالک، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے وہ موقوفاً ہے۔ اس سے مراد کہ یہ ان کی اپنی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر اللہ کی زیارت کی ہے، جو کہ اما عائشہ نے 439 سے مسلم میں کلیئر کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نور کو دیکھا تھا وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ صحابی جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے آئے تھے، تو جب اما عائشہ نے یہ بات کہی تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ماں صبر کریں، اور کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کو روشن کنارے پر دیکھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلی تھی اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، میں نے انہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی کہ ان صحابی کا بھی وہی عقیدہ تھا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر یہ بات بھی کلیئر کر دی تھی کہ کیا آپ نے معراج پر اللہ کی زیارت کی ہے یا نہیں۔ کہ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کافی سارے صحابہ کو اس عقیدے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جو کہ اما عائشہ نے بعد میں کلیئر کر دی تھی۔ بلکہ صحیح مسلم 445 میں تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پردہ نور ہے، اگر اللہ اس پردے کو کھول دے تو اللہ کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ اس کی مخلوق کو جلا کر راکھ کر دے گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ امید ہے کہ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ انسان جاگی ہوئی حالت میں چاہے نبی ہو چاہے کوئی عام انسان ہو اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں، اور کیا اللہ غیر نبی سے خواب میں کلام کر سکتا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تمام انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں، اور عام مومن کے خواب مبشرات ہوتے ہیں جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ تاہم مشکات 748 میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا، میں نے نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا کیا میرے رب حاضر ہوں؟ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا کچھ مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کیا ہے اللہ تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن ہمیں غیر نبی یعنی عام مسلمان مومن کے حوالے سے اللہ کی زیارت والی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ لیکن سورہ شورا کی آیت نمبر 51 کو پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناممکن ہے کہ بندہ سے اللہ کلام کرے
मगर वही के जरिए पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ता को भेजे और वो अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वही करे, बेशक वो बड़ी हिकमत वाला है। और याद रहे कि यहाँ वही से मुराद अलका इल्हाम, दिल में कोई बात डाल देना या ख्वाब में दिखा देना है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। पर्दे के पीछे से कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया गया और फरिश्ते को भेजकर अपना पैगाम पहुंचाने का अमल तमाम अंबिया के साथ ही अपनाया है, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आया करते थे। लेकिन याद रहे कि ये तीनों तरीके ज़ाहिरी हालत में यानी कि जागी हुई हालत में सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ खास हैं। इन तीनों तरीकों के जरिए अल्लाह अपने नबियों तक शरीयत के अहकामात, कोई गैब की खबर या मुस्तकिल से रिलेटेड पैगाम भेजता था। लेकिन अंबिया के अलावा उनके के लिए सिर्फ मुबशिरात हैं, जिसमें मुस्तकबिल से रिलेटेड खबरें हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि मुबशिरात नबूवत का 46वां हिस्सा है और नबूवत का एक हिस्सा भी झूठ नहीं हो सकता। पर मुबशिरात की बातें वीडियोस के शुरू में मैं आपको हदीस से समझा चुका हूँ। और अब ये हदीस पढ़ें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ता के जरिए सहाबा कराम को अजान के कलिमात सिखाए। अबू दाऊद 498 में आता है कि जनाब अबू उमैर बिन अनस अपने एक इंसानी चचा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद हुए कि किस तरह लोगों को नमाज के लिए बर वक्त जमा किया जाए। तो आपसे कहा गया कि नमाज के वक्त झंडा बुलंद कर दिया करें, लोग जब इसे देखेंगे तो एक दूसरे को खबर दिया करेंगे। मगर आपको ये राय पसंद ना आई। फिर नरसिंगे का जिक्र किया गया जैसे कि यहूद का होता है, ये राय भी आपको पसंद ना आई, ये यहूदी का अमल है। फिर आपसे नापूस का जिक्र किया गया तो आपने फरमाया ये नसारा का अमल है। चनाचा अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दरबा मजलस से लौटे तो वो इसी फिक्र में गलतान थे जिसमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उन्हें ख्वाब में अज़ान बताई गई। चनाचा वो सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और आपको खबर दी और कहा, है अल्लाह के रसूल, मैं सोने जागने की कैफियत में था कि मेरे पास एक आने वाला आया और मुझे अज़ान बता गया। रावी ने कहा कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इनसे पहले ये अज़ान ख्वाब में देख चुके थे, मगर 20 दिन तक खामोश रहे। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें खबर देने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका था? तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद मुझसे सबकत ले गए थे, इसलिए मुझे हिया आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल खड़े हो जाओ, देखो जो अब्दुल्ला बिन ज़ैद तुम्हें बताए वो करो। चनाचे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान दी। अबू बशरा कहते हैं कि अबू उमैर ने मुझे बताया कि अंसारियों का ख्याल था कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद अगर इन दिनों बीमार ना होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं को मुअज़्ज़िन मुकर्रर करते। तो इस हदीस को पढ़ने के बाद हमें ये भी कन्फर्म हो गया है कि अल्लाह किसी भी गैर नबी से ख्वाब में फरिश्ता के जरिए कलाम कर सकता है। और सूरह शूरा में अल्लाह ताला के बंदे से कलाम करने के 3 तरीके हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए ही सहाबी को अज़ान के कलिमात सिखाए हैं, जो कि अभी अभी हमने हदीस में पढ़े हैं। तो जब अल्लाह फरिश्ते के जरिए किसी गैर नबी से कलाम कर सकता है तो अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम भी कर सकता है, क्योंकि सूरह शूरा आयत नंबर 51 के मुताबिक अल्लाह के बंदे से कलाम करने के 3 तरीके हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला जागी हुई हालत में सिर्फ अंबिया कराम के साथ ये 3 तरीके इख्तियार कर सकता है। अंबिया के अलावा मोमिन या मुसलमान के साथ ख्वाब के जरिए तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका इख्तियार कर सकता है, क्योंकि हदीस से फरिश्ते के जरिए कलाम करना साबित हो गया है। और यही वजह है जिसकी वजह से मैं मोहम्मद कासिम का ख्वाब में अल्लाह से कलाम करने को रद्द नहीं कर सकता। और ये बात भी क्लियर हो गई है कि कासिम के ख्वाब शरीयत के खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं। और याद रहे कि मोहम्मद कासिम ने ख्वाब में भी अल्लाह ताला को सर उठाकर नहीं देखा और हमेशा नूर को ही देखा है। मोहम्मद कासिम के मुताबिक अल्लाह की आवाज़ इस नूर से आती है और इस नूर से नीले रंग की रोशनी भी निकलती है। और अल्लाह का किसी भी गैर नबी से कलाम करना अजान वाली हदीस से साबित हो चुका है। और यहाँ ये भी याद रहे कि मोहम्मद कासिम ने भी सिर्फ फ्यूचर में आने वाले वाक़यात ही देखे हैं, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस में मुबश्शिरात बोला है। और ये भी फरमाया है कि क़यामत से पहले मोमिन मुसलमान के ख्वाब कम ही झूठे होंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो आना है। और जब हम सब जानते हैं कि खत्म नबूवत के सदके वही का सिलसिला अल्लाह ने बंद कर दिया है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी शायद अल्लाह ख्वाबों के जरिए रहनुमाई और मदद करे। ये मेरा एक अपना ख्याल है, क्योंकि हदीस में मुबश्शिरात वाली हदीसें बहुत आई हैं। और ये भी याद रहे कि दीन कंप्लीट हो चुका है और दीन में कोई न्यू अहकामात नहीं आ सकते, वरना ये दावा नबूवत हो जाएगा। और वो सहाबा जिनको अज़ान के कलिमात अल्लाह ने ख्वाब में सिखाए थे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे और शरीयत भी कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन अब सिर्फ मुबश्शिरात ही आ सकते हैं। उम्मीद है कि इतनी डिटेल में समझाने के बाद आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। इसलिए मोहम्मद कासिम के बारे में गलत कमेंट पास करने से बेहतर है कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब सुने और समझे और सच्चा होने का इंतजार करें। और झूठा हुआ तो 2 साल में सब पता चल जाए। ख्वाबों के मामले में अपने ख्वाबों के बारे में किसी से कोई झूठ नहीं बोल रहा, और ये लोगों को पता चल जाएगा। मेरी आप खुद हिसाब लें कितना मैं जी लूंगा। कोई बड़ी हद आप कहेंगे ना, अच्छा जी 100 साल, तो पता चल जाएगा। मैं अगर सच बोल रहा हूँ तो ख्वाब सच्चे हो जाएंगे, झूठ बोल रहा तो नहीं होंगे सच्चे।
تو اس میں اتنا یعنی کہہ دینا کہ جی میں پاگل ہوں یا میں کوئی یعنی کوئی ذہنی مسئلہ ہے مجھے یا کوئی شیطان آ رہا ہے، یہ کیسا شیطان ہے جو مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی شرک اور اس کی احسان سے اپنے آپ کو بچائیں، کینہ اور بغض اپنے اندر سے نکالیں، غرور تکبر نہ کریں، یہ چیزیں شیطان تو نہیں سکھائے گا نا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ محمد قاسم کون ہے، کہاں سے ہیں، خواب کیوں بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کو مہدی کیوں کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور کیا وہ بھی خود کو مہدی کہتے ہیں یا نہیں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم پاکستان کے شہر لاہور کے رہائشی ہیں اور سید بھی ہیں۔ لوگ ان کو مہدی اس لیے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر تمام نشانیاں جو احادیث میں آئی ہیں پوری ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المستدرک الحاکم 8670 میں فرمایا ہے کہ مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی، شرم و حیا کا پیکر ہوگا اور ماتھے کے اگلی جانب سے بال اڑے ہوئے ہوں گے، جو کہ محمد قاسم کے اندر تمام نشانیاں پوری ہیں، اور زمین کو اتنا حساب سے بھر دے گا۔ اور محمد قاسم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ جب وہ زرداری کے بعد پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں، جو کہ اس خواب میں بتایا گیا ہے، جو 6 سال پہلے قاسم بھائی نے اپلوڈ کر دیا تھا، جا کر خود سن لیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی حسن کی اولاد سے ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی کا نام ہوگا، اور وہ اخلاق میں امام حسن کے مشابہ ہوگا لیکن صورت میں نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں واضح لکھا ہے کہ صورت میں مشابہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد قاسم کے اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن چہرے پر ابھی تک داڑھی نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے درجے پر فائز نہیں کرے گا، جو کہ ابن ماجہ 4085 میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ ان کو ایک رات میں درست فرمائے گا، لہٰذا محمد قاسم کی داڑھی پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان شہید ہونے کی وجہ بھی بنے تھے، مگر اللہ نے ان کو ہدایت دے کر رومن اور پرشین امپائر کو الٹا دیا۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، لہٰذا خاموش رہنا بہتر ہے اور بقایا خواب پورے ہونے کا انتظار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مہدی کے اخلاق حسن کے مشابہ ہوں گے اور صورت و شکل میں نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی سند تھوڑی کمزور ہے اور حدیث ضعیف ہے، اور صحیح سند کے ساتھ مجھے یہ حدیث دوسری کتابوں میں ابھی تک نہیں ملی۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو کمنٹ میں شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ اور یہ بات بھی بالکل سچی ہے کہ ہم تمام انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم فوراً دوسروں کے بارے میں بغیر جانے فوراً غلط کمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ جب اللہ نے بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا تو لوگوں نے بغیر جانے فوراً تہمت لگانا شروع کر دی، اور یہ جاہل انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے خوابوں کا سچا ہونے کا انتظار کریں اور فضول کمنٹ پاس مت کریں۔ ایک اور حدیث ابو داؤد 4284 میں آیا ہے کہ مہدی فاطمہ کی عطرت میں سے ہوگا اور قاسم کی سید ہے۔ ابو داؤد 4282 میں آیا ہے کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد احمد ہے، اور محمد آپ کا ذاتی نام ہے، اور احمد، قاسم، طاہر، طیب، مدثر، مزمل اور بہت سارے نام جو قرآن کے دوسری جانب لکھے ہوتے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، لہذا قاسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، محمد قاسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد کا نام عبداللہ ہے یعنی کہ اللہ کا بندہ، اور محمد قاسم کے والد کا نام عبد الکریم ہے، اور کریم بھی اللہ کا نام ہے، اور عبد الکریم کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہے، اور یہ نشانی بھی محمد قاسم میں پوری ہوتی ہے۔ اور اب آپ المستدرک الحاکم کی 8531 نمبر حدیث کو بھی پڑھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ مہدی زبان سے اجمی ہوگا لیکن نسلاً عربی ہوگا یعنی کہ سید ہوگا۔ اور یاد رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراسان سے لشکر آنے کی بات کی تھی تو اس وقت پاکستان، ایران اور افغانستان وجود میں نہیں آئے تھے، اور حدیث میں اشارتاً بات ہوتی ہے کہ مطلب اس طرف سے آئے گا، جیسے دجال کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کی سیر کرے گا اور اس کی سواری گدھا ہوگا، اور یہاں گدھے سے مراد جہاز بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان تینوں ملک میں سے کسی ملک سے بھی مہدی ہو سکتا ہے۔ اور محمد قاسم پاکستان کے شہر لاہور سے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بھی بات پریشان کر رہی ہوگی کہ مہدی کا ظہور کعبہ کے اندر طواف دوران ہوگا، جو کہ حق ہے۔ اصل میں یہ والی بات پوری دنیا کے سامنے ہوگی جب پوری دنیا مان جائے گی کہ یہی مہدی، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی خراسان کے لشکر میں سے ہوگا تو اس کی بیعت کرنا چاہے تمہیں برف کے پہاڑوں سے رینگ کر آنا پڑے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ مہدی کی حکومت خراسان کے کسی ایک ملک میں قائم ہو چکی ہوگی۔
اب بھی یہی ہوگا, کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے, میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا, گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اور پھر یہی لشکر عرب سے حکومت چھین کر دوبارہ خلافت کا نظام قائم کرے گا. اور عرب سے یہ حکومت چھیننا اس لیے بھی ضروری ہوگی کیونکہ عرب کے حکمران اس وقت سب مفلوج ہو چکے ہیں اور پیسے کی خاطر وہ اپنا دین و ایمان اور سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور سعودیہ جیسے مقدس ملک جہاں پردے بے حیائی اور اسلامی قوانین کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان غیر مسلم اس ملک کی مثال دیا کرتے تھے, لیکن بدقسمتی سے اب وہاں بھی بے حیائی, بے پردگی اور ناچ گانا شروع ہو چکا ہے. اور دوسری طرف فلسطین کے حالات ہم سب کی آنکھوں کے سامنے. خیر, یہ سب ہونے سے پہلے امام مہدی کی کعبہ میں طواف کے دوران بیعت لی جائے گی, جو کہ اس وقت طواف کرتے ہوئے لوگ لیں گے, جو کہ اس وقت کے نیک ترین لوگ ہوں گے. اور اب آپ نے محمد قاسم کا یہ خواب دیکھیں. اس خواب میں محمد قاسم کہتے ہیں کہ جب پاکستان کالے رنگ کے جنگی جہاز حاصل کر لیتا ہے, جو کہ وہی سے عالم ہو سکتے ہیں جن کا حدیث میں ذکر ملتا ہے, تو پھر پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ ان کالے رنگ کے جنگی جہازوں کے ذریعے کرتا ہے اور ان کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مشرق وسطیٰ کے کچھ مقبوضہ علاقوں کو بھی آزاد کروا لیتا ہے. یہ کالے رنگ کے جنگی جہاز کسی بھی ملک کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیتے اور اس پر اپنا تسلط جمانے سے روک دیتے ہیں. دنیا حیرت زدہ ہوتی ہے کہ پاکستان نے اتنی اعلیٰ صلاحیت کہاں سے حاصل کر لی. جو ملک بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آگے بڑھتا, یہ کالے رنگ کے جنگی جہاز اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں. اس طرح اللہ پاکستان کے لیے تدبیر کرتا ہے اور یوں پاکستان میں امن و ایمان قائم ہو جاتا ہے اور اس عمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو ترقی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. مزید یہ کہ پاکستان کو جنگ عظیم سوئم کی طرف تیاری کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, جو کہ ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے. دنیا بھر کے مسلمان ان کالے رنگ کے جنگی جہازوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ کر بسنا چاہتی ہے اور اسلام کی نشاط ثانیہ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. چنانچہ پاکستان میں تمام دنیا کے مسلمان آ کر بسنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی زبانیں, ثقافت, طور طریقے سے منفرد اور جدا ہوتے ہیں. پاکستان ایک متحدہ اسلامی مملکت بن جاتا ہے جہاں کسی بھی قسم کی رنگ و نسل کی تفریق نہیں ہوتی. کوئی اس بات کو اہمیت نہیں دیتا کہ دوسرا یورپ سے تعلق رکھتا ہے یا افریقہ سے, مشرق سے تعلق رکھتا ہے یا ساؤتھ ایشیا سے. تمام مسلمان متحدہ اسلامی مملکت پاکستان میں بھائی بھائی بن کر رہنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اسلام یہاں کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے. وہ مسلمان جو کبھی فرقہ واریت میں پڑے ہوئے تھے اب اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. دنیا بھر کے لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ قاسم کو روکنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قاسم کو ہدایت کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ جل شانہ قاسم کی مدد کرتا ہے اور اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلاتا ہے. چنانچہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے. اس دوران پاکستان کے مسلمان محمد قاسم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی امامت کا کام سنبھالیں, یعنی کہ ان کے لیڈر بن جائیں. اور اس خواب میں وہ لوگوں کی اس بات کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ میں اس قابل نہیں. ایک اور خواب میں لوگ ان کی منتیں کرتے ہیں کہ آپ امت کی امامت کا کام سنبھالیں, یعنی کہ ان کے لیڈر بن جائیں. آخرکار وہ لوگوں کے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوگا تو میں امت کو لیڈ کرنے کے لیے یعنی ان کا امام بننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. پھر محمد قاسم اور ان کے ساتھی مدینہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد قاسم کو مسجد نبی میں روضہ رسول پر بلایا جاتا ہے. محمد قاسم کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دماغ میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس گزارش کو مسرت کر دیں گے. وہ بیسیکلی میں اپنے گلے سے اتارنے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو لیڈ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو وہ بھی سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ بہتر ہے. تو پھر ہم نہ جاتے ہیں مدینہ. تو اب مجھے یہی ہوتا ہے 100% کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے بندے کو تو کبھی نہیں کہ تم جاؤ. تو یہ چیز نہ میرے ذہن میں ہوتی ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں. تو پھر میں وہ ڈریم میں اندر جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر مبارک ایسے کھلتی ہے, باہر تشریف لاتے ہیں اور پھر میں لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں اور میں اندر ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے نہ کہہ رہے کہ اس طرح سے نہ میں آ گیا. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ میری توقعات کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں ضرور آگے آنا چاہیے. تو پھر ایک تلوار بھی دیتے ہیں. تلوار جیسے وہ لوہا گرم نہیں ہوتا
उसका जैसा रंग होता है उस तरह से उसको, लेकिन वो जब मैं पकड़ता हूँ तो वो ठंडी होती है, बस उसका शायद रंग वैसा होता है। तो अब ये होता है, तो मैं अब परेशान नहीं, तो अब मैं वापस जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि क्या बात हुई, और मैंने तलवार दी, इस तरह से देख लेंगी। तो मैं बजाय उन पे जाने के ना वो दूसरे रास्ते से ना मक्का चला जाता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरमाते हैं कि आप यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मक्का जाना है। तो मैं उधर उनको बताया बगैर उधर निकल जाता हूँ। तो अब वो उस ड्रीम में ही होता है कि वो तवाफ के दौरान जो है ना वो कुछ लोग रोक लेते हैं, हाँ कहते हैं आप कासिम है ना, यानी वो मुझे पहचान लेते हैं। तो वो चूंकि अब मैं पीछे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वादा करके आया होता हूँ, तो फिर मैं उधर इनकार नहीं करता, बस उधर वो ये चीज़ होती है। और आखिर में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मोहम्मद कासिम को ख्वाब में अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, इसलिए वो ये सब ख्वाब बयान कर रहे हैं। और मोहम्मद कासिम के ख्वाबों में मेहदी होने से रिलेटेड भी काफ़ी ख्वाब मौजूद हैं, जो कि उन लोगों को मजबूरन बयान करना पड़ते हैं, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। जब मुझे ये ड्रीम्स आ रहे थे तो मुझे नहीं था पता ये मुझे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, इसका क्या मकसद है या क्या नहीं है। तो ये फिर कई सालों के बाद मुझे ड्रीम में आया, हुक्म हुआ कि मैं ये ख्वाब लोगों से शेयर करूं। तो मुझे नहीं था पता उस वक्त, ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग चीज़ थी कि ये कैसे हो सकता है कि इन ड्रीम से तो शायद मेरे अपने घर वाले यकीन ना करें, तो ये लोग कैसे यकीन करेंगे। और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में कहा कि मैं अपने ख्वाब दूसरों से शेयर करूं। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके कोई हुक्म दें कि ये आप काम करें, तो क्या आप उनको इनकार कर देंगे? तो कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे इनकार करे। वो तो सारे मुसलमान जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह मैं भी था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो फिर मैंने कहा कि आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो ये तो फिर ड्रीम्स हैं और बैड कमेंट्स आते हैं, मुझे भी थोड़ा सा हर्ट होता हूँ मैं, बुरा लगता है मुझे, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर फिर इसको कबूल एक्सेप्ट करता हूँ। मोहम्मद कासिम का कहना है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल अगर आपके ख्वाब में आकर हुक्म दें तो क्या आप ख्वाब नहीं बयान करेंगे? यही वजह है कि मैं भी मजबूर होकर ये ख्वाब बयान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेहदी कहने की जरूरत नहीं है और ना ही वो किसी किस्म की बैत लेते हैं। बस आप इनके सदर बनने का इंतजार करें और ख्वाब पूरे होने का इंतजार करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हुई है तो बराए मेहरबानी अपने प्यारों तक भी ये पैगाम पहुँचा दें, क्योंकि मोहम्मद कासिम को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब शेयर करने का हुक्म दिया है और ये ख्वाब मोहम्मद कासिम ने 5/3/2015 को देखा है। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि मैं इस ख्वाब में अपने आप को मशीनरी में बैठा हुआ देखता हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं एक पुरसुकून और पाक मस्जिद में हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आकर बैठते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में 4 बड़े साइज के सोने के कागज होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पुरजोश अंदाज में फरमाते हैं, कासिम मेरा ये पैगाम एक बार फिर मेरी उम्मत तक पहुँचा दो। जो तुम्हारा साथ देगा वो ऐसे ही है जैसे उसने मेरा साथ दिया और क़यामत के दिन भी मेरे साथ होगा। कासिम मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दो जो मेरे इस काम में तुम्हारा साथ है। वो ये ना सोचे कि उनका ये काम नेकी में शुमार किया जा रहा है या नहीं। कासिम चाहे कोई छोटा सा भी काम क्यों ना हो, वो ये ना समझे कि इसके करने का कोई फायदा नहीं। कासिम चाहे कोई छोटी सी भी कामिश करेगा तो अल्लाह जल्ल शानो से ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह जल्ल शानो उनके कामों को कहीं गुना बढ़ाकर लिखता है। ये कोई मामूली काम नहीं है तो ये लोग कर रहे हैं। वो ये ना सोचे कि मुझे उनके नाम और काम का मालूम नहीं है। अल्लाह जल्ल शानो जिन लोगों के नाम इन सोने के कागज़ों पर लिख रहा है, मैं उनके नाम पढ़ता रहता हूँ और जो वो काम करते हैं अल्लाह जल्ल शानो मुझे उनसे आगाह करता रहता है। उन लोगों को चाहिए कि परेशान ना हो, वो क़यामत के दिन मेरे साथ होंगे। और जो सोने के कागज अल्लाह जल्ल शानो ने मुझे देता जा रहा है मैंने अपने पास संभाल कर रख रहा हूँ। इन कागजों पर उन लोगों के नाम मौजूद हैं जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ देते हैं। ऐसा मेरा सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में अल्लाह की मदद से फैल कर रहेगा, तो मेरा ये पैगाम उन लोगों तक जरूर पहुँचा देना। मैं खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि उन कागजों पर लिखे गए नाम पढ़ूं, मगर खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझे ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं होती और मैं बिल्कुल खामोश और साकत बैठा रहता हूँ, यहाँ तक कि मुझे खुद ये मालूम नहीं कि मेरा नाम भी इन कागजों में लिखा है या कि नहीं। और एक और ख्वाब जो कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने 30/9/2015 को देखा। इस ख्वाब में अल्लाह जल्ल शानो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं एक जगह पर होते हैं।
गुमसुम बैठा होता हूँ और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते हैं कि मेरा बेटा गुमसुम क्यों बैठा हुआ है। मैं खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है। अभी तक सिर्फ थोड़े से लोग हैं जिन्होंने मेरा और मेरे ख्वाबों का यकीन किया है और कुछ इंतजार में बैठे हैं कि देखो इसके ख्वाब सच्चे होते भी हैं या नहीं, और ये अल्लाह ही जानता है कि सच बोल रहा है कि झूठ। और बाकी सब ने मुझे दीवाना ही समझा है और ये कहा है कि इसका साथ देना तो गुनाह है। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश और थोड़े गुस्से में आ गए और मेरी तरफ तेजी से बढ़कर कहने लगे, कासम मेरा ये पैगाम मेरी पूरी उम्मत तक पहुंचा दो। जो तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ खड़ा होगा वो ऐसे ही है जैसे वो मेरा साथ दे रहा है और मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो वो अल्लाह और मेरे कहने पर कर रहे हो। अल्लाह उन लोगों को दुगना अजर देगा जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। देखो जो तुम्हारे साथ दे रहे हैं अल्लाह खुद उनका नाम सोने के औराक पर सुनहरी हरूफ से लिखता जा रहा है। और मेरे बेटे अल्लाह नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता, और जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है वो दरअसल अपना ही नुकसान कर रहा है। मैं अपनी पूरी उम्मत को तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ ताकि क़यामत के दिन मेरा कोई उम्मती मुझे ये इल्जाम ना दे सके कि खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हमें कासिम के बारे में बताया ही कब था, वरना हम जरूर इसका साथ। एक और ख्वाब जो कि मोहम्मद कासिम ने 20/9/2015 को देखा। मैं इस ख्वाब में देखता हूँ कि हर तरफ तरीकी है, हमारे पास सब कुछ है मगर अपनी लाइटें और बल्ब जलाने के लिए भी रोशनी नहीं है और हर शख्स रोशनी की तलाश में सरगर्दा है। फिर मैं देखता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानहू अपने फजल से मुझे रोशनी दे देता है। मैं उलमा इकराम, मुफ्ती और लीडरों के पास जाता हूँ और इन्हें बताता हूँ कि मेरे पास रोशनी है और मैं इससे लोगों के घरों को रोशन कर सकता हूँ। लेकिन उलमा इकराम, मुफ्ती साहिबान और लीडर मेरी बातें यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि मेरे पास रोशनी है, मगर वो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहते, यानी ना वो मुझे रोकते हैं और ना ही मना करते हैं कि मैं इस बात का किसी और से जिक्र ना करूँ। वो कहते हैं कि कासिम जो कर रहा है उसे करने दो, वो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, उसके पास रोशनी नहीं है। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू मुझे बताता है कि कासिम परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अल्लाह जल्ल शानहू मेरी मदद करता है और आम मुसलमान मेरी बातों पर तेजी से यकीन करना शुरू कर देते हैं। फिर यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिर हर कोई मुझ पर यकीन करता है और कहता है कि कासिम अल्लाह जल्ल शानहू ने जो रोशनी तुम्हें दी है इससे हर चीज़ को रोशन कर दो। मैं इस रोशनी को अल्लाह जल्ल शानहू के फजल से पूरी दुनिया में फैलाता हूँ। तो उलमा इकराम कहते हैं काश हमने भी इस पर इतबार किया। और ख्वाब जो कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने 5/10/2017 को देखा। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि मैं इस ख्वाब में अपने आप को एक ऐसी जगह मौजूद पाता हूँ जहाँ इर्द गिर्द घर और इमारतें होती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह जल्ल शानहू हमारे बिल्कुल ऊपर बादलों से भी ज़्यादा करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह जल्ल शानहू बहुत गज़बनाक है, क्योंकि वो बहुत ऊंची और गज़बनाक आवाज़ के साथ कलाम कर रहा होता है। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान की अज़ाब वाली आयत पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने लोगों को किसी काम करने का हुक्म दिया था, मगर उन्होंने ना तो वो काम किया और ना ही उसकी परवाह की। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम पर वैसा ही अज़ाब नाज़िल करूँगा जैसा कि इससे पहले मैंने नाफरमान कौमों पर नाज़िल किया था। फिर अल्लाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भेजे गए अज़ाब को याद करता है और फरमाता है कि क्या तुम इस अज़ाब को भूल गए हो। मैं कहता हूँ अल्लाह तो बहुत गज़बनाक है। फिर मैं देखता हूँ कि लोग बदअवाज़ी के आलम में भाग रहे होते हैं और चुप रहे होते हैं, मगर वो जहाँ कहीं भी छुपते हैं तो अल्लाह फरमाता है मुझे मालूम है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई भी मुझसे नहीं छुप सकता। फिर मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरी जानिब भागना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह फिर वही बात दोहराता है कि मुझे मालूम है कि तुम कहाँ छुप रहे हो, कोई भी मुझसे नहीं छुप सकता। जब मैं देखता हूँ तो मैं भी भागकर छुपने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार अल्लाह जल्ल शानहू गज़बनाक हो जाए अगर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं इन लोगों से दूर रहना चाहिए और किसी महफूज जगह की तलाश करनी चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि कुछ और लोग भी मेरे साथ भागने लगते हैं। मैं उनसे नहीं पूछता कि वो मेरे साथ क्यों भाग रहे हैं। आगे बहुत दूर जाकर मुझे एक जगह नजर आती है। मैं कहता हूँ कि ये जगह बेहतर है। वहाँ एक कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता हूँ। जो लोग मेरे साथ आए होते हैं वो भी मेरे करीब बैठ जाते हैं। ये जगह पुरअमन होती है, अगरचे मुझे यहाँ भी अल्लाह जल्ल शानहू की आवाज़ आ रही होती है, मगर वो बहुत मध्यम होती है। मैं कहता हूँ कि ये एक जगह तो बहुत महफूज है, यहाँ अल्लाह ने अपना अज़ाब नहीं भेजेगा। फिर मैं देखता हूँ कि कुछ बाअसर लोग वहाँ आते हैं। जब वो हमें वहाँ मौजूद पाते हैं तो आपस में कहने लगते हैं कि ये लोग तो यहाँ अमन और सुकून में बैठे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ अल्लाह अपने अज़ाब नहीं भेजेगा। फिर मैं परेशानी के आलम में इंतजार करता हूँ कि कब अल्लाह जल्ल शानहू की नाराज़गी खत्म होगी ताकि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। मैं सोचता हूँ कि जब मैं घर वापस जाऊँगा तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा होगा और ख्वाब वही खत्म हो जाता है। और बाद लोगों के दिमाग में ये भी सवाल पैदा होता होगा कि मेहदी की बैत 40 साल में होगी, जबकि मोहम्मद कासिम तो 48 साल के हो गए हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि उलमा इकराम ये हदीस किताबुल फितन 1008 से रवायत लेते हैं, जिसमें अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मेहदी 40 साल के होंगे जब ज़ाहिर होंगे, और वो इस तरह होंगे जैसे बनी इसराइल के नौजवान। इस हदीस के मुताबिक वो 40 साल की उम्र में ज़ाहिर होंगे। तो मोहम्मद कासिम के मुताबिक उन्होंने 10 अप्रैल 2015 को एक ख्वाब देखा कि खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करते हुए फरमाया, मेरे बेटे कासिम क़यामत से पहले 4 बड़ी निशानियाँ रुनुमा होंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली निशानी आपका ज़हूर है मेरे बेटे। और ये ख्वाब कासिम भाई ने 10 अप्रैल 2015 को देखा था और लोगों को, उलमाए किराम को बताया भी था। और इस वक्त कासिम भाई की उम्र तकरीबन 40 साल ही थी, क्योंकि कासिम भाई 5 जुलाई 1976 में पैदा हुए हैं और ये ख्वाब 10 अप्रैल 2015 को देखा था, तो इस लिहाज से इनकी उम्र 40 साल ही बनती है। एक और हदीस किताब अल फितन 1007 में काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि मेहदी की उम्र 51 या 52 साल होगी। इस रवायत के मुताबिक ये भी हो सकता है कि मेहदी 40 साल में खुरासान में ज़ाहिर हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-मुस्तदरिक अल-हाकिम 8531 में फरमाया है कि मेहदी खुरासान के काले लश्कर का खलीफा होगा तो उसकी बैत करना। तो इस हदीस के मुताबिक मेहदी का ज़हूर मशरक़ में होगा और शायद 51 या 52 साल की उम्र में कासिम भाई पाकिस्तान से भागकर अरब जाएं, जब वो ज़रदारी के बाद पाकिस्तान के सदर बन जाते हैं। और कासिम भाई के ख्वाब के मुताबिक जब फ़लस्तीन और मिडल ईस्ट से वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाती है तो ग़ज़वा हिंद इस जंग का आखिरी पार्ट होता है और मुसलमानों का दोबारा रोज ग़ज़वा हिंद जीतने से ही शुरू होता है और ये जंग का सिलसिला 3 से 4 साल का होता है। और 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक इस जंग को तकरीबन 9 माह हो चुके हैं और जंग रुकने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। खैर, इस रवायत के मुताबिक अगर देखा जाए तो कासिम भाई के पाकिस्तान के सदर बनने के बाद ग़ज़वा हिंद होती है और ग़ज़वा हिंद जीतने के बाद ब्लैक जेट फाइटर को देखकर अफगानिस्तान, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं और पूरी दुनिया से मुसलमान भी पाकिस्तान में आ जाते हैं और फिर वो सब मुझे उम्मत मुसलमान की इमामत के लिए फोर्स करते हैं तो मैं मदीना भाग जाता हूँ। और ये ख्वाब आप पहले से सुन चुके हैं। और जैसा कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब के मुताबिक ग़ज़वा हिंद इन 4 साल के अंदर होगी और मोहम्मद कासिम की उम्र अभी तक तकरीबन 48 साल है और इस लिहाज से भी कासिम भाई की मदीना बैत तक उम्र 52 साल ही बनती है। और किताबुल फितन 1010 में अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी का हुलिया बताते हुए फरमाया कि इनकी जुबान में कुछ शकल यानी कि लुकनत होगी और जब बात करने में दुश्वारी होगी तो अपना दायां हाथ अपने बाईं हथेली पर मारेंगे। इनका नाम मेरे नाम के मुताबिक और इनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा। और जो वैसे आपने ये तो देखा है शैतान का जो ऐसे पैसादार है सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, तो क्या पता शैतान ही तरबियत देता हो? हाँ, देता है। वो तो मैं ड्रीम्स में भी देखा है कि वो जो पावर्स अपग्रेड करता है उसमें शैतान उसकी मदद करता है। सही। और ये एक ड्रीम में तो शैतान उसको कहता है, असल में उसकी खोपड़ी यानी परी होती है सर, तो वो इंसानों की शक्ल में होता है शैतान और लोगों को जैसे वो बकरियों को नहीं हाँकते हुए ले चल जाते, तो उस तरह ना वो जो बदतरीन लोग होते हैं ना उनको वैसे ही ना लेके जा रहा होता है अपने साथ। तो रास्ते में वो दज्जाल की ना सर पड़ा होता है खोपड़ी, तो वो उसको उठाता है और ऐसे देखता है और कहता है, आह मेरा अजीम सिपा सलार, जिसको यानी इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी नहीं, वैसे तो आप माशाल्लाह बड़े शर्मीले और बड़े नफीस आदमी माशाल्लाह। तो मैंने आपको इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। अगर आप मेरे शुरू के जो इंटरव्यूज़ देखें या इवन 2021 के या 22 के इंटरव्यूज़ देखें तो मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा। नहीं आप माशाल्लाह, मैं तो आपको बहुत अच्छा एक स्पीकर पाया है। अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये सिर्फ अल्लाह की अल्लाह की मदद के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। वरना अगर आप 6 महीने मुझे पहले कहते तो मैंने हाथ खड़े कर लेने थे। हम आपको 6 महीने पहले फिर भी ले आते और हमने आपका इंटरव्यू कर लेना था। ये अल्लाह ताला ने हमें खास एक टैलेंट से नवाजा। और इन सब हदीसों के मुताबिक भी तमाम निशानियां मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के अंदर पूरी हो रही हैं, लेकिन ये हदीस की एक अलग से किताब है और ये अहादीस इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्ने माजा और दीगर शेखैन ने नकल नहीं की, जिसकी वजह से इनकी सनद का मुझे इतना खास इल्म नहीं है। लेकिन दीगर उलमाए कराम इस किताब से अहादीस नकल करते रहते हैं, जैसा कि मेहदी अलैहिस्सलाम की 40 साल की उम्र में ज़ाहिर होने वाली हदीस भी आप सुन चुके हैं, जो कि इसी किताब अल फितन में मौजूद है। और अगर इन अहादीसों की सनद सही भी है तो तब भी ये निशानियां मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के अंदर पूरी हो रही हैं। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि मैं भी आपकी तरह काफी अरसा से ख्वाब पूरे होने का इंतजार कर रहा था और मेरी आंखों के सामने अभी तक काफी ख्वाब पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी शेयर कर दूं। जज़ाकल्लाह। और मेहदी अलैहिस्सलाम के इस हुलिया के पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये भी हिकमत हो सकती है कि इस दौर में हर इंसान गुनाहगार है। अल्लाह अगर मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को इस हुलिया के बावजूद हदायत की आला दर्जे पर फैज कर सकता है तो ये बात हमारे लिए भी उम्मीद पैदा करती है कि हम सब भी सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएं और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि मौत से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क जैसे इतने बड़े गुनाह की भी तौबा कबूल कर लेता है और तमाम गुनाह मुआफ कर देता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें यह भी हिकमत हो सकती है कि एक आम इंसान को अल्लाह ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया दीन का इल्म सिखाए, जिससे फिरका परस्त उलमाए कराम के इल्मी तकब्बुर की भी आजमाइश हो सके। और आखिर में मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो
वीडियो अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स और अकाउंट्स में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। إلى